Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back once again to the ROG Showdown series by ROG India and Intel, bringing you back to this desk. This is me, Darshita, and alongside me, it is once again going to be Ahana, and we are live currently from Bhubaneswar. It has been an amazing journey the previous day, but Ahana, how excited are you for today's day? Well, this is definitely one of the most OG spaces out there for CS, and I am pretty excited to see what Bhubaneswar has to bring to the plate. They've been pretty good, and this Yeah. this particular location is one of those where I expect a lot of cutthroat matches since the beginning. Yep, that's going to be true. A lot more higher for competition and also the players. I mean, different name, unique team names, especially when it all goes down to all these tournaments that we keep talking about. But again, there's a lot on stake right now, right? From the title itself, we also have a huge prize pool to talk about, which will soon be on our screens. But again, there's a huge prize pool that we also can keep talking about. So these players, they need to be very, very careful. Here we are, 50,000 as a total prize pool, where the first place gets 35,000 and the second gets 15. I mean, divided into people, you get a lot of money in return for a one-day tournament. Exactly. I mean, that's like a good starting point and also a good motivator for people out there who are trying to delve their hands into gaming world, find out about how it's all going around, and all these store activities. They're not only inviting people to learn about the games but also giving them a good incentive, and I mean this is quite a lot of incentive. Yeah, that's going to be true. And also a chance to compete against professional players as well. I mean, you never know that, there are players around you who are professionally competing in CS2 right now, and you get a chance to compete against them and learn a lot more. So there can be a lot that you can take back home rather than just some money in your bank account and the title. There's a lot of experience and the learning that we always keep talking about, but today's day is going to be more and more interesting. Again, we keep talking about it, right? CS2, 2v2, which is more important again, because you never know when the entire responsibility goes onto the shoulders of one remaining player. So there's a lot that is gonna happen today. But again, if I ask you, Ahana, what is the first map that you're expecting for today's day? Well, I mean, if it was under my control, I would definitely go for Inferno, always, all the Inferno. time. Yeah. Inferno, always. I mean, if I talk about the proper competitive matches that are going around right now, people tend to hate Inferno as compared to the CSGO times versus the CS2 that is happening right now. Yeah. But honestly, if we witness in this Wingman series that we are gonna have on our screens for the entire day, I guess Inferno should be your to go map every single time, because you get a lot more opportunity as compared to the other maps. Exactly, and also it's slightly, a more flexible map, I could say, because there are multiple entry points. Mhm. Obviously, there's one extra in Inferno compared to the other, and you also have quite a good, setup for the side of CT as well to go ahead and hold, which can give you a great crossfire setup to make sure that the terrorists are falling into your traps as they try to run into the site. That's going to be true. But I guess we already have some leaks about the upcoming match and the match veto itself. And if I'm not wrong, we are going to start things off with a map of Nuke. So, what are your takes? I first want to listen from your end. What are your take on the map of Nuke? Okay, I don't like Nuke a lot. Okay. The main reason being it's That's fine. very ratty. It's very ratty. But we're gonna start the day off there and hope for better in the future. But yeah. I mean Nuke is definitely um, yeah. yeah, please go ahead. Expect honestly to start today's day with the map of Neo. I did expect maybe an Inferno, because we've seen this happening before as well, right? Players tend to Yeah, rely more on Inferno because that is one map that you can have your hands on and be really comfortable with. But whenever it goes down to map like Nuke, I guess you need to be more into CS2 scenarios. You need to learn more about the map. You need to learn on how to create that space and get the control of the map itself to gain the rounds consecutively. So it's going to be tough for both of these teams, but I guess if they are going and choosing Nuke, there should be a plan in their head. exactly. But yeah, I mean, as you mentioned, Nuke does put up, players into a very dynamic situation, which makes it very important to know the use of your utilities alongside being able to have the presence of mind of knowing where exactly to aim as you enter the place.
to make sure that you're getting Yep. all the frags out, which makes me feel like early nukes are not the best choice, because like early times, as we talked earlier as well, in the early few games of the day, we generally see people of all ranges of experience in CS, from very good to very bad, everything just coming together, everyone just trying their hands into it. So I feel like a little more filtration puts things in a better perspective. But yeah, we're gonna start off with something very challenging nonetheless. Mean, yeah, that's Bhubaneswar, the players from Bhubaneswar for you, I would say, because they really love challenges and they really want to challenge themselves every single time. But the previous day itself, when we're talking about all these matches, we tend to witness one match where it was kind of very one-sided. I mean, remember the matches of Team C and G. To start things off, they did not get their Yes. hands on the initial pistol round, and that's where we thought that this might be a very competitive match coming up from both of these ends. But after that, it was just a one-sided domination coming up from the side of the CNG itself, and they tend to have what continuously back-to-back consecutive rounds for them, and not just rounds. They just did not stop. They got the entire map victory for them, and that's where we knew that we might even witness a lot of one-sided domination coming up from these players. Exactly, and one-sided dominations actually make ROG Showdown series very fun, to be honest. Like, when you're seeing a generic match, one-sided domination makes it look very, very boring, to be honest. But in this Yeah, particular series, because it's Wingman and it's very fast-paced and it has action all through, even a one-sided series, you will never know how exciting it will be till the end. yep. But for now, ladies and gentlemen, I guess it's high time that we get going in the match itself. Very first match that we are talking about, we have the sides of Team TLK. They're going to face the sides of Team JGN. Now, interesting names again. Assassino, Adi going up against Pain. Glooly, okay. I think we've seen playing before as well. Let's see. That's the same man, but for now, a very slow start to this game. I remember seeing Assassino and Adi as well. I think these are the same teams that showed up in the last ROG Showdown series as Ooh, well. And well, things are painful for Pain. definitely seemed to be that case. Adi, just on both of them. I mean, what an amazing start for him, Team Lucky. A good start. They got their first round. Things were a bit wobbly for the sides of Team JGN, but I feel it's completely alright going down to the second round itself. It's going to be a fast pace from the sides of TLK as well. I mean, they have their hands on good weapons, so they might just go in and decide to fight. But what's the plan from JGN? Because again, if this draw this down, might just be an economically disastrous round. But what's more disastrous is the situation for Pain, as he's not able to connect even one Ooh. single shot with Adi. Cuts him down. Now goes on to one last remaining player. Really? Not really sure if we'll be able to find anything. Adi shuts him down as well. And guess what? In 2 rounds, Adi has secured all the frags. That's 4 for him in total. Yep, and Team Lucky की तरफ से I think Assassino is gonna be the wingman, जो कि यहाँ पे आदि Yeah, को support करने के लिए बैठे हुए हैं. But yeah, Team Juggernaut, it was a great approach, लेकिन उसको result नहीं दिला पाए वो कहीं भी, and that's pretty sad, pretty बिल्कुल. sad. हाँ, वो चीज तो रही आदि चले फिर शुरुआत की आदि ने एक फ्रैग निकाला जरूर पेन के पास से ट्रेड आएगा वहाँ पे 1v1 against Assassino, best possible teammate that he would find. 3-0. I'd still say कि जिस तरीके की शुरुआत की है टीम टीएलके ने यहाँ पे काफी ज्यादा शानदार रहेगी पिस्टल राउंड और इसका जो अगला वाला राउंड था उसका पूरा पूरा शेयर जाता है यहाँ पे आदि को सिक्योरिंग 4 फ्रैग्स गॉट वन मोर इन द थर्ड राउंड इटसेल्फ Assassino with a perfect help 3-0 शुरुआत बहुत अच्छी है बट टीम जेजीएन व्हाट्स द प्लान फाइनली आदि को वहाँ पे शट डाउन किया जाएगा एंड इट ऑल गोज डाउन टू Assassino 1 versus 2 आहाना वेल असैसिनो को अभी तक हमने बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस डिलीवर करते देखा नहीं है, बट मोस्टली बिकॉज आदि ऑलरेडी काम निपटा देते थे. दिस टाइम विल गेट टू सी इफ True. असैसिनो हैज़ इक्वल कैलिबर इन हिमसेल्फ एज हिज टीममेट. ये डबल डोर एंट्री पेन को भारी पड़ने वाली है. ही डज नॉट हैव हिज आईज एट द राइट कॉर्नर. Assassino ओह right नो. around the corner स्मोक के अंदर जाएंगे जरूर परफेक्ट नेवर अभी के लिए तो नहीं थे स्मोक के पास किया उन्होंने just so around the corners position देखिए आप उनकी
वो स्मोक कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रिवेल कर रहा है, बट बॉम्ब प्लांट हो चुका है। पोस्ट प्लांट की बारी आएगी असैसिनों के पास। हाँ, उनके पास डिफ्यूजल किट जरूरी रहेगा, बट ये स्मोक का फेवर जाना बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। एक को स्पॉट किया, बट पेन ने इंस्टेंटली वहां पे असैसिनों को टेक डाउन किया। एंड पहला राउंड जो की टीम जेजीएन निकाल के जाएगी। ये काफी ज्यादा क्लोज राउंड गया ऑनेस्टली, बिकॉज Yep. अगेन वो एक स्मोक ने काफी ज्यादा बचा के रखा था असैसिनों को टिल अ पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वो रिवील हो चुके थे, एंड उसके बाद it was very difficult to survive. 3-1 JJ, and they finally got their very first round. वेल आई डू फील लाइक कि पिछले राउंड में शायद स्मोक को पुश करना एक बेटर आइडिया रहता है यहाँ पर फॉर असैसिनो, क्योंकि वो Yeah. अकेले फाइट कर रहे थे अगेंस्ट 2 पीपल, तो क्रॉस फायर का हिस्सा नहीं बनते एंड कहीं ना कहीं अपने आप को कंसील रख पाते इवन आफ्टर द फर्स्ट फ्लैग, मेकिंग इट अ 1v1। बट वेल आइसोलेट नहीं कर पाए फाइट्स को एंड खुद दोबारा से आइसोलेटेड रह गए। ही इज अगेन इन अ 1v2, दिस टाइम ही गोस फॉरवर्ड विद कंप्लीट एनाहिलेशन इन हिज ब्लड। यही तो चाहिए था। इस बार गलती नहीं करेंगे। पिछली बार जानते थे कि 1v2 था, निकाल सकते थे वो राउंड, बट इस बार आप देखिए किस तरीके से परफेक्टली दोनों प्लेयर्स को टेक डाउन किया। उम्मीदें काफी ज्यादा कम थी इस राउंड की ऑनेस्टली विद साइड्स ऑफ टीम टीएल के, बट फिर भी असैसिनो दोनों फ्लैग्स लेके जाएंगे एंड ये राउंड अपने टीम के लिए सिक्योर करेंगे। 4-1 लीड काफी ज्यादा मेंटेन करने की पूरी कोशिश रहेगी, बट असैसिनो मिस कर जाएंगे एंड पेन काफी ज्यादा दिक्कत देंगे उन्हें वहां पे। 1 वर्सेस 2 आदि नॉट रियली श्योर इफ दैट्स द परफेक्ट स्पॉट टू बी इनटू, बिकॉज आप देखिए दोनों भी खिलाड़ियों को किस तरीके से एकदम क्लोज क्वार्टर्स में आके रुके हुए हैं। वो एक गलत मूव काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है, बट असैसिनो ने अपने आप को प्रूव किया था पिछले राउंड में 1v2 निकाल के। क्या इस बार आदि भी वो चीज कर पाएंगे? इट डज सीम लाइक आदि को मौका तो मिलने वाला है, काफी लो एचपी थी ऑलरेडी पेन पे, उसका फायदा तो उठाया एंड कहीं ना कहीं लास्ट फाइट नहीं ले पाए। बुरा हुआ, टीम लकी के साथ ज्यादा लक नहीं है अभी के लिए। बिल्कुल 4-2 टीम JGN धीरे धीरे ही सही कमबैक करने की पूरी कोशिश कर रही है वो। लेट्स सी इफ दे आर एबल टू डू इट, बट नाउ असैसिनो एंड आदि इन टर्म्स ऑफ वेपन अगर मैं बात करूं तो आई डोंट थिंक दीस आर द परफेक्ट वेपन जो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहिए रहेंगे, बिकॉज आप खुद जानते हैं आपकी करने का ट्राई कर रही आदि वेरी क्लोज क्वार्टर में आ चुके थे, बट पेन दिस टाइम ओवर अगेन स्पेयर नहीं करेंगे। पेन barely सर्वाइव कर रहे हैं आप देखिए, barely even breathing. Assassino find that 1v1 दोनों भी प्लेयर्स काफी ज्यादा लो है, 11 HP on both of them. Who comes up on the top is the question. अभी भी बॉम्ब प्लांट करना है, so JJ and they need to be very careful. But Assassino, I guess he has a lot of information, but still Pain, he comes up on the top. AK works wonders for him. 4-3 JGN क्लोज इन करने का ट्राई कर रही है अब। यप, पेन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्किल दिखाई दिए पिछले राउंड के अंदर एंड वही स्किल लेवल उनका अगर कंटिन्यू होता है तो टीम को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ओवरऑल अभी भी एक राउंड की बढ़त है टीम लकी के पास में, लेकिन उसको क्लोज डाउन करना ज़्यादा मुश्किल होना नहीं चाहिए जगरनॉट्स के लिए। लेट्स सी हाउ दिस गोज ऑन। फिलहाल के लिए assassin अगर वो जानते हैं कि किस चीज में वॉक इन कर रहा है, वो जानते जरूरी है। एक तो सिर्फ शट डाउन नहीं किया वहां पे, बट आप देखिए कितना डैमेज दे दिया उनके टीममेट को भी। मुश्किल है ये राउंड बहुत ज्यादा जीजीएन के लिए। ट्रू, टीम लकी एक एडवांटेज के साथ एंटर करना चाहती है इनटू द सेकेंड हाफ एंड ये लीजिए इन्फॉर्मेशन भी मिल गई, साथ ही साथ फ्रैग भी मिल गया। 5-3 के स्कोर लाइन के साथ फर्स्ट हाफ को फिनिश करते हुए टीम लकी। अच्छी शुरुआत है वैसे तो, पहले हाफ में एक अच्छा लीड, एक अच्छा एडवांटेज था। हाँ, कहीं ना कहीं पे जेजेएन ने ट्राई जरूर किया था कि उसे एक 4-ऑल के स्कोर लाइन पे खत्म किया जाए, बट वो चीज क्लियर कट मना की गई टीम लकी की तरफ से। 5-3 बनाओ टीम लकी। देखना ये कि अगर ये राउंड सिक्योर कर लेती है, कहीं ना कहीं तो हम जानते हैं अर्ली राउंड सिक्योर करने का एक अच्छा एडवांटेज इकोनॉमिकली भी उन्हें अगले आने वाले राउंड में मिलेगा। पर पेन क्या वो प्रिपेयर है, शॉट कट करने की कोशिश जरूरी की थी वहाँ पे दोनों प्लेयर्स ने, जिसके असैसिनो पेन को शट डाउन करेंगे। आखिरी बच्चे में खिलाड़ी है जेजेएन की तरफ से। वेल इन्फॉर्मेशन है, असैसिनो कोशिश जरूर की थी उन्होंने, बट चलिए बॉम्ब प्लांट हो चुका है, बारी आ चुकी है पोस्ट प्लांट सिचुएशन के। पोस्ट प्लान सिचुएशन जनरली थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती ज़रूर है, बट यहाँ पर स्टिक करने की कोशिश रहेगी एंड इट डज नॉट वर्क आउट, डज नॉट वर्क आउट। 0.1 सेकेंड बहुत ज्यादा क्लोज था। आप देखिए रिप्ले में देखिए कितना ज्यादा क्लोज किया, वो ऑलमोस्ट डिफ्यूज हो चुका था, ऑलमोस्ट,
बट चलिए टाइम पे आगे आए आदि वहाँ पे एंड राउंड को बचा लिया। टीएल के 6-3 3 राउंड का डिफरेंस है यहाँ पे, बट ये शॉट गन जी नहीं कुछ नहीं देने वाली है। ट्रेड जरूर आया असैसिनो की तरफ से 1 for 1। असैसिनो हाँ वेपन्स का एडवांटेज रहेगा, बट क्या उन्हें पोजीशनिंग पता है? बिकॉज आप शायद एंटिसिपेट नहीं कर रहे, बट अब वो जानते हैं। राइट अराउंड द कॉर्नर। यप, काफी अच्छा डैमेज ऑलरेडी डील कर चुके हैं एंड अब जब उन्हें पता है कि सामने वेपनरी में इतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं रहने वाला है, तो अपने आप को लॉन्ग डिस्टेंस पे ही रख के इस फाइट को अंजाम देना चाहेंगे। कहीं ना कहीं क्लोज इन करने की कोशिश है एंड उस कोशिश को कामयाब करते हुए दिखाई दिए टीम जगरनॉट। इस बार डिफ्यूज हो जाएगा। बिल्कुल 6-4 टेक्निकली ये राउंड टीएलके का होना चाहिए था, जिस तरीके से पिछले राउंड में वो राउंड सिक्योर किया था, बट अगेन जेजेएन सिक्योर करेंगे वो ये राउंड। असैसिनो के पास एक अच्छा एडवांटेज भी था, बट चलिए अभी भी 2 राउंड का डिफरेंस मेंटेन करके चल रही है। लीड अभी भी जो है वो हमें टीएलके के पास देखने को मिल रही है। सो कहीं ना कहीं पे ये चीज़ फायदेमंद जरूरी हो सकती है, बट लेट्स सी इफ दे आर एबल टू फाइंड एनीथिंग एल्स, बिकॉज दिस टाइम ओवर अगेन आदि के पास अब देखिए शॉटगन्स के साथ आगे क्लोजिंग करने की जो कोशिश है। वेट कर रहे हैं कोई शायद क्रॉसफायर में चल के आए। ये मोलोटॉव थोड़ा सा दिक्कत दे सकता था, बट चलिए एस्केप कर लेंगे वो सिचुएशन से। आप देखिए स्मोक ने कितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन फिर दोबारा से प्रिवेल करी है वहां पे। कहीं ना कहीं इट सीम्स लाइक जो सिचुएशन है उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश बहुत ज़्यादा है यहाँ पर टीएलके की तरफ से, लेकिन विद द लॉस ऑफ मेंबर्स ऑन देयर साइड जेजीएन के हाथ में एक और राउंड सौंपते हुए नजर आ सकती है ये टीम। Oh no. What? That wasn't supposed to be his battle. Assassin और पेन को कैसे मार पाए? चमत्कार। एडवांटेज बिल्कुल एडवांटेज था अच्छा खासा टीम लकी के ऊपर, बट जेजीएन स्लोली एंड स्टेडली दे आर ट्राइंग टू क्लोज इन 6 ऑल का ये जो स्कोर लाइन है वो बहुत जल्दी हो सकता है, बिकॉज अब देखिए जेजीएन जिस तरीके से खेल रही है वो माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं। टीम लकी दे जी। आर नॉट एबल टू आंसर बैक येट। थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा दिस टाइम ओवर। आई डोंट थिंक कि वो इकोनॉमी भी इतनी अच्छी है उनके पास कि उसे एक फुल बाय में कन्वर्ट कर सके। जिस तरीके से शुरुआत की थी टीम लकी ने, ऑनेस्टली ऐसा लगा था कि वो एक रैम्पेज मोड पे जा सकते हैं, दे कैन सिक्योर राउंड्स consecutively, बट अगेन जेजीएन दे प्रूव टू बी बेटर दिस टाइम ओवर इन एटलीस्ट इन द पास्ट 2 राउंड्स। आप देखिए जिस तरीके से वो टीम प्ले दिखा रहे हैं, जो ट्रेड्स आ रहे हैं, जिस तरीके से वो माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर द साइड्स ऑफ टीम जेजीएन। बट देखना ये कि अब टीम लकी किस तरीके से आंसर बैक करती है, बिकॉज शुरुआती दौर में अच्छा लीड लिया था, फर्स्ट हाफ में भी अच्छा लीड लिया था, एंड उसे गंवाना आई गेस थोड़ा सा मैच को उनके हाथ से भी गंवा सकता। यप, ज़्यादा ज़्यादा लंबा ये गेम होता नहीं है, इसीलिए रिकवरी का बहुत ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं मिलता किसी टीम को। प्लस यू आर ऑल्सो रनिंग शॉट ऑन मेन, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत बनती ही रहती है कॉन्स्टेंटली एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट एवरी सिंगल टाइम यू एंटर इनटू द अरीना। आई फील लाइक टीम लकी को अगर जीत हासिल करनी है तो इसको 6 ऑल का स्कोर होने से बचाना ही पड़ेगा, बिकॉज बीइंग ऑन द सिटी साइड इट सीम्स लाइक जगरनॉट्स काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। या that's just so true. I mean टीम एंड we did talk about it, right? हमने बात भी किया था इस चीज पे कि ये एक बेस्ट ऑफ 1 का सीरीज है, देयर इज नो अदर चांस दैट यू हैव। आपको मौके नहीं मिलने वाले हैं इसके बाद। इफ यू लूज द बेस्ट ऑफ 1 इट्स जस्ट डन। सो आपको जो करना है वो इस ही काबले में करके दिखाना पड़ेगा। दूसरे चांस का वेट फिर आपको अगले इवेंट तक का ही सीधा करना पड़ने वाला है। बट ये शुरुआत अभी भी राउंड 1 हम विटनेस कर रहे हैं, इसके बाद आगे चल के राउंड 2, राउंड 3, सेमीज, ग्रैंड फाइनल्स, काफी कुछ चीजें हैं जो हम इंटैली विटनेस करने वाले हैं। फिलहाल के लिए एक हल्का सा पॉज प्लेयर्स की तरफ से, सून मैच के अंदर भी रहेंगे हम। यप, इट डज सीम लाइक कि प्लेयर्स थोड़ा सा अपने आप को रीअसेंबल करने के लिए एक वरदान प्राप्त कर चुके हैं एंड गोइंग बैक इनटू द गेम। लेट्स सी हाउ द रिकवरी कम्स फ्रॉम द साइड ऑफ टीएलके और मे बी हाउ जगरनॉट जस्ट शेक्स द ग्राउंड अंडरनीथ देम। क्या निंजा एंट्री है। बिल्कुल वरना मौका भी मिला, प्लान भी कर लिया। ओह नो, चलिए आदि सर्वाइव कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था वहाँ पे। पेन काफी ज्यादा नजदीक में है। फायदा अच्छा है जेजेन के पास, साथ में अगर दोनों प्लेयर्स क्लोजिंग करते हैं तो निकाल दिया जा सकता है। असैसिनो, ओह नाइस, नॉट दोनों प्लेयर्स के ऊपर कनेक्ट करके असैसिनो को राउंड लेके आए अपनी टीम के लिए। बहुत ज्यादा क्रूशियल था, यप। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इतनी बार भी जेजेन प्रयास कर रही है कि वो क्लोजिंग करे एंड इक्वलाइज करे नंबर्स को,
टीम लकी उन्हें डिनाई कर रही है ना। आप देखिए 7-5, 4-4 पे भी ये चीज हुई थी, 6 ऑल पे भी ये चीज हुई है, स्कोर लाइन 7-5 का चल रहा है। टीएलके जिस तरह से खेल रही है फिलहाल के लिए तो ओहो, काफी ज्यादा घातक सिचुएशन बनी थी, बट द डाइस जस्ट कीप्स रोलिंग बैक एंड फोर्थ। जेजीएन भी काफी कड़ा जवाब देते हुए। consecutively rounds, कभी इधर कभी उधर, टीएलके जेजीएन बोथ आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। शॉट काफी ज्यादा अच्छा था ऑनेस्टली, वहां पे एक्सपेक्ट नहीं किया यप। जाएगा, बट ये मौका है अब क्लोजिंग करने का। देखिए वेपन का अच्छा खासा एडवांटेज है जेजीएन के पास, उन्होंने भी अच्छी खासी मेंटेन करके रखे, तो उस चीज का फायदा उठा सकते हैं, इक्वलाइज जरूर कर सकते हैं नंबर्स को ऐसे। लेट्स सी, बार बार स्कोर लाइन इक्वलाइज करने का लालच दिया जरूर जा रहा है जेजीएन को, लेकिन उसकी प्राप्ति नहीं होने दी जा रही है टीम लकी की तरफ से। बिल्कुल। So let's see if this is gonna be the round where the dreams come true for the side of Juggernauts, or TLK ओ reaches their point. देखने वाली बात तो जरूर है कि दिस टाइम ओवर आप देखिए अप्रोच कितना ज्यादा स्लो रखा गया है टीएलके के पास से। बहुत ज्यादा स्लो अप्रोच है ये आज ही, ओपन द गेट्स तो। बट चलिए असैसिनो का इंफॉर्मेशन वहां पे मिल चुका है ऑलरेडी। दोनों भी प्लेयर्स को काफी हार्ड पनिश किया गया। देखिए असैसिनो 11 एचपी पे है, नादी 32 एचपी ऑल दैट ही हैज। आई गेस एक्सपेक्ट किया गया था यहाँ पे कि पुश किया जाएगा जेजीएन की तरफ से। आप वेपन्स को भी देखिए, क्लोज रेंज में काफी एडवांटेज था इन्हें, बट लॉन्ग रेंज में जाके फाइट्स लेना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है। पेन का पोजीशनिंग काफी ज्यादा अच्छा है। 20 सेकंड्स रिमेनिंग ऑन द क्लॉक, प्लान क्या है अब ये देखना है, बिकॉज टीएलके ये स्लो अप्रोच काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स में डाल सकता है उन्हें। पूरी तरीके से स्लो करके फिर दोबारा से साइड एंड करने का प्रयास किया, फिर जैसे ही स्पॉट केक को टेक डाउन करेंगे, दूसरे प्लेयर को वहां पे टेक डाउन किया गया, एंड फाइनली 4 ऑल इक्वलाइज नहीं हो पाया, 6 ऑल इक्वलाइज नहीं हो पाया, बट 7 ऑल इक्वलाइजेशन हमने जरूर देखा। Yep, and this is getting so close for comfort. टीम लकी के लिए यहाँ पे जो एक बहुत ही ज़्यादा सिंगल हैंडेड विक्ट्री हो सकती थी, वन साइडेड विक्ट्री हो सकती थी, वो धीरे धीरे इतनी मुश्किल, इतनी दूर नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं टीम लकी को अपने लक पर कहीं कोई शक होने लगा होगा अब तक। मुझे पोजीशन बहुत डाउटफुल लग रही है टीम लकी की। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस क्रॉस। ट्रू, नॉट श्योर इफ दैट इज गोना रिवॉर्ड देम, बट अब ये राउंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा क्रूशियल हो चुका है। ये राउंड काफी सारी चीजों को खेल को दिखाने वाला है, बट चलिए असैसिनो को टेक डाउन किया आगे। नॉट द परफेक्ट सिचुएशन टू बी इनटू। आप देखिए कितना ज्यादा लो है, 1 एचपी पे, अगर बैरी वन सर्वाइविंग, फाइंड्स वन ऑन टू पेन दो, बट अभी भी इसके लिए बहुत ज्यादा है। 1 एचपी पे ये क्लच अगर निकाल जाते हैं तो रिवॉर्ड्स काफी ज्यादा हाई मिलेंगे, बट जी नहीं, टेक डाउन किया जाएगा उन्हें भी। 7-8 जेजीएन, मैच पॉइंट है उनका। वेल कहाँ स्टार्टिंग में ये लग रहा था दर्शिता कि टीम लकी यहाँ पर अपने लिए जीत हासिल करने वाली है एंड सबसे पहले मैच पॉइंट तक तो वही पहुंचेंगी, ये आभास होने लग गया था। बट जगरनॉट जस्ट टर्निंग द टेबल्स अराउंड एंड दोबारा से एक बार आदि को बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में छोड़ दिया गया है। He has very little to survive for. He just has been burned alive though. 1v1 Assassino, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है इस बार, निकाल पाते हैं। आंसर is a no. It's going to be the sides of JGN who secures the victory. पहला मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा क्रूशियल, बट एट द सेम टाइम आप देखिए कितना ज्यादा इंटेंस भी हो चुका था, बिकॉज हम बात भी कर रहे थे इस चीज की, राइट। हमने एक्सपेक्ट किया था कि जेजीएन का मैच क्लोज करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, बट चीजें काफी ज्यादा उल्टी हुई हमारे प्रेडिक्शन से कंपेयर करें तो। Exactly, and this is Bhubaneswar for you guys. ROG Showdown series जब भी इस सिटी में आता है कुछ ऐसा ही होता है, and we've seen that happen today in the first match of the day itself. It was so close. It was so you know calculative from both the sides, and कहीं ना कहीं I did feel sad for Team Lucky because काफी अच्छे एक या start के साथ आए थे, एंड जो भी उम्मीदें बन रही थी हर एक राउंड में वो सारी की सारी आखिरी के जो लास्ट फ्रैग के साथ नष्ट हुई हैं उनके लिए। दैट वाज प्रीटी हार्ट ब्रेकिंग फॉर देम। आई मीन एक सिंगल शॉट एंड इट वाज डन, जस्ट क्लोज्ड। Yeah, that's just gonna be so true, man. बट चलिए पहला जो Rangers का पहला मैच यहाँ पे समाप्त हो चुका है। हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के ऊपर। विल सी यू गाइस विद इन द शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड एंड कहीं पे भी मत जाइए।
Hello and welcome back everyone to ROG Showdown series. I'm your host Anna and मेरे साथ में Darshita. We're back. It's been a while but we're back. We'll remind you it's us and Darshita. The first game was pretty Yep. close. It took us a while to absorb what we saw, but now we're back and I'm expecting even more action in the next one. What do you think? Yeah, definitely. It's digested. Whatever has happened has happened. We are all set to witness the upcoming match itself. Now, what's the point of suspense here is the fact कि मैप कौन सा आने वाला है, because हमने expect नहीं किया था कि Yes. दिन की शुरुआत हम न्यूक से करेंगे. So I'm kind of very excited to witness on what map it is for the second one. I mean, fingers crossed. I am still hoping for an Inferno कि finally हमें जाके Inferno देखने को मिले. But again, what are your take? Do you really want an Inferno? I do want to watch an Inferno as soon as possible, लेकिन Vertigo से भी मुझे दिक्कत नहीं होगी as long as I'm getting to see all the maps out there. We've already seen Overpass yesterday, and we're gonna see Overpass Overpass again. today again. There we are. Okay, interesting start. We have the sides of team RBZ going up against the sides of team HNM. HNM, well, all right. For now at least, LK को बहुत ज़्यादा low कर दिया जा चुका है already. First pack launches to the sides of LK, Sons को take down किया वहाँ पे. Last player to survive. Not really sure if कुछ कर पाएंगे. किया देखते हैं तो take down किया 1 versus 1. LK versus Bunty. Okay. Let's see who comes up on top. Well, the HP is pretty low on LK. But being the counter terrorist, उनके पास ज़्यादा कोई मौका भी नहीं है अपने आप को, relocate करने का. But he does have a good off angle that he makes capitalization on. Unexpected सा round यहाँ पर our boys ले जा चुके हैं. वो भी हनुमान जी के हाथ से छीन के. Yep, it's going to be true. Our boys, good start for them. पहला round निकाला है, weapon advantage है, but बाय हमें H&M की तरफ से भी देखने को मिलने वाला है. So again, might just be an equalizing fight. You never know. LK right around the corner. फ्रैग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा. Killian is able to capitalize. Sons की तरफ से वहां पे एक फ्रैग निकाला गया. Goes down to 1v1. Sons versus LK. Who comes up on the top decides what happens. गेम बन गया है फिलहाल के लिए तो, बच्चा रिपीट किया जाएगा. LK दूसरा डैमेज दिया वहां पे. टेक डाउन किया जाएगा दोनों भी प्लेयर्स को LK की तरफ से. एंड सेकंड राउंड गोस टू द साइड्स ऑफ आवर बॉयज. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा एक गंदा डिसीजन मेकिंग लगा फ्रॉम दी साइड ऑफ सॉन्स टू बी ऑनेस्ट दर्शिता बिकॉज लाइक वो एक लंबा टनल है एंड वंस यू स्टार्ट वॉकिंग इनसाइड इट फिर आपके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बचती है एंड द अदर पर्सन कैन कीप जिगलिंग इन एंड आउट ऑफ योर विजन लाइन टू कंटिन्यू फाइटिंग विथ यू. ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टेकन पुश लगा मुझे सॉन्स की तरफ से बट वेल इट वॉज वॉट इट वॉज एंड नाउ इट सीम्स लाइक एक दोबारा से गट्सी अटेम्प्ट यहाँ पर सॉन्स लेने जा रहे हैं. सॉन्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सकती थी. एक फ्लैश था उनके पास. आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने सॉन्स के पास एक फ्लैश देखा भी था वहां पे. फ्लैश का प्रयोग किया था. एक फ्लैश था उनके पास वहां पर. उसका पूरा प्रयोग किया जा सकता था बट ड्रैटिक के लिए आगे बढ़े. एंड तीसरा राउंड आर बॉयज निकाल के लेके जाने वाली है. एचएनएम अगेन इन्वेस्टमेंट्स किए जाएंगे बट आप देखिए जिस तरीके से यूटिल का यूज किया जा रहा है आरबी सेट की तरफ से. हाँ, this time over is being used in the sides of H&M as well, but पिछला राउंड काफी ज्यादा क्रूशियल था. This time over LK की तरफ से होल्ड काफी ज्यादा अच्छा है. एंड आई गेस इन टर्म्स ऑफ यूटिल अभी भी एक फ्लैश रहने वाला है उनके पास जो कि काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. ट्रू दैट हर एक यूटिलिटी का यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैपिटलाइजेशन कर पाना एक टीम का कैलिबर बताएगी एंड फिलहाल के लिए नंबर्स का एडवांटेज सिक्योर करके राउंड्स का एडवांटेज सिक्योर करके आरबीजी अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दिखा रही है. For now, Sons अकेले बचे खिलाड़ी है. 1 versus 2. Not really sure if that's the best place to be into in that 1v2 situation. Because कोई ना कोई तो आपको चेक करते ही रहेगा. देखिए ऑलरेडी एक प्लेयर मौजूद है वहाँ पे. स्पॉट किया जाएगा. जी हाँ, टेक डाउन किया जाएगा निम्स की तरफ से आपके सॉन्स को. दोनों भी प्लेयर्स एक एक किल निकाल के जाएंगे. 4-0 का ये स्कोर. आरबीजेड दे हैव हैड अ गुड स्टार्ट फॉर देम. बहुत अच्छी शुरुआत है ये. जिस तरीके की शुरुआत वो चाहते थे वैसी ही मिली है उन्हें. बट देखना ये कि अब टीम एचएनएम की तरफ से क्या कोई जवाबी हमला आता है. बिकॉज इफ एट ऑल थिंग्स टेंड टू बी द सेम वे, इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट के लिए यहाँ से आगे बढ़ना एंड राउंड सिक्योर करना. दिस टाइम ओवर अग्रेशन दिखाया है सॉन्स की तरफ से. हालांकि देखिए आप आगे बढ़ चुके थे बट चलो.
वो एक ऑफ इन्वेस्ट की गई है। वेल सिचुएशन कंट्रोल में करने की कोशिश ज़रूर से दिखाई दे रही है एचएनएम की तरफ से, लेकिन खास रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। दैट्स अ ग्रेट शॉट, वेरी क्रिस्प फ्रॉम द साइड ऑफ एलके। थोड़ा सा डैमेज अब्जॉर्ब भी किया है, लेकिन अपनी टीम को दोबारा से एक विनिंग अपॉर्चुनिटी दिला दी है। चलिए 5-0 धीरे धीरे करके एक क्लीन विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ती हुई आपको आर बॉयज देखने को मिलने वाली है। देखना ये कि एचएनएम क्या कुछ कर पाती है। अभी भी मौका है उनके पास पहला हाफ 5-3 पे खत्म करने का, अगर 3 राउंड कॉन्जिक्यूटिवली यहाँ से निकालते हैं। बट आई डोंट थिंक दैट्स गोना बी पॉसिबल बिकॉज इकोनॉमिकल डैमेज है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है आगे से। बहुत ज़्यादा परफेक्ट था वो एलके। उन्होंने देखा भी नहीं कि उनके एनिमी कौन थे। फ्लैश कितना ज़्यादा अच्छा आया वहाँ पे। निम्स अ परफेक्ट टीममेट जो आपको चाहिए रहेगा आपकी टीम के लिए। आप देखिए वो फ्लैश कितना ज्यादा परफेक्ट था, वो शॉट कनेक्ट किया गया। फॉर फैक्ट ये भी देखा गया था कि एलके वाज नॉट एबल टू सी हिज एनिमी, स्टिल वो शॉट जो आपका उन्होंने कनेक्ट किया, वो फ्लैग निकाला। हाँ टेक डाउन जरूर किया गया एलके को वहाँ पे, बट अगेन निम्स राइट अराउंड द कॉर्नर फ्लैग निकाला एंड राउंड से किया 6-0। वेल काफ़ी कंसील्ड पोजीशन रख के अपने आप को बैरल्स में छुपाने की कोशिश ज़रूर थी निम्स की तरफ से, बट नाउ दैट एलके इज़ ऑलरेडी आउट ऑफ द पिक्चर, जो भी प्लानिंग थी यहाँ पे छुप छुपा के खेलने की, वो तो डिस्ट्रॉय हो चुकी है फॉर द साइड ऑफ आरबीजी। बट आई डोंट थिंक दे रियली नीड टू हाइड ईदर, क्योंकि काफ़ी अच्छा एडवांटेज ऑलरेडी अपने तरफ लेके चल रहे हैं। 2 राउंड्स में फर्स्ट हाफ खत्म हो जाएगा एंड इन एनी कंडीशन एक बहुत शानदार फर्स्ट हाफ रहने वाला है ये आरबीजी के लिए। बिल्कुल अगर ये राउंड हार भी जाते हैं तो आई डोंट थिंक ये कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बट निम्स एक 1 वर्सेस 2 देखना ये क्या निकाल पाते हैं अपनी टीम के लिए। आंसर इज गोना बी नो एंड फाइनली पहला राउंड यहाँ पे सिक्योर किया जाएगा टीम एचएनएम की तरफ से। दिक्कत काफी ज्यादा हुई बट चलिए आखिरी राउंड पिच के पहले देखना ये कि क्या 6-2 होता है या अभी भी 7-1 के साथ आर बॉयज जो कि है वो एडवांटेज लेके अगले हाफ में वापस जाते हैं। इफ एट ऑल इट इज अ 7-1 स्कोर लाइन, यू नो हाउ क्रूशियल द पिस्टल राउंड इज गोना बी। बट अगेन एलके के पास वो अभी भी मौजूद है, उसे रोक पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी-कभी। यूटिल का काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाएगा, एलके को फोर्स किया जाएगा पोजीशन छोड़ने के लिए। बट जब उसकी तरफ से फ्लैग आता हुआ पहला स्मोक को डिसरिस्पेक्ट किया, आगे बढ़े उसके एंड आप देखिए किस तरीके से ब्लॉक किया गया है पूरा साइड का एंट्रेंस, पूरा विजिबिलिटी जीरो Yep. कर दिया जाएगा। निम्स दूसरा भी फ्लैग निकालेंगे एंड 7-1 के साथ पहला हाफ जो कि है वो खत्म करती हुई टीम आर। RBZ, the way they're playing, this is phenomenal. And कहीं ना कहीं H&M को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दबाव में डाल दिया गया है ऑलरेडी। सीटी साइड पर आकर क्या ये गेम का रुख बदल पाएंगे, इज़ गोना बी अ वेरी बिग क्वेश्चन। मुझे संभावना काफ़ी कम लगती है, बट देन आई मीन यू कैन नेवर से इट्स डन अंटिल इट्स डन, सो होपफुल इज़ व्हाट आई विल बी फॉर द साइड ऑफ H&M। यप आई मीन ये एक राउंड बहुत सी चीजें डिसाइड भी कर देगा एंड जो पिक्चर है वो क्लियर भी कर देगा हमारे लिए। अगर ये राउंड एचएनएम निकालती है तो चांसेस है कि वो कमबैक कर पाए यहाँ से, बट अगर ये राउंड आरबीसी के हाथ में जाता है देन यू नो इट्स डन। उन्होंने किया शॉट की तरफ से आगे जरूरी आ रहा है, स्मोक के अंदर ऑलरेडी मौजूद एलके को टेक डाउन किया, एक शॉट सीधा हेड पे। बट चलिए निम्स आखिरी बचे हुए खिलाड़ी 1 वर्सेस 2 माइट जस्ट फाइंड 1, यस ही डज। ऐसा स्ट्रगल किया वहाँ पे बट अभी भी मौका है। स्मोक के अंदर अपने आप को काफी ज्यादा हाइड करके रखा है टर्न्स ने, ट्राइंग टू गो इन फॉर अ ग्रेट प्लांट। तो पोजीशन पता नहीं थी वहाँ पे सॉन्स को एंड ये राउंड भी अपने हाथ से निकल जाएगा। एचएनएम नहीं निकाल पाएगी ये राउंड। इट ऑल गोज डाउन टू द मैच पॉइंट्स ऑन साइड्स ऑफ आरबीसी ऑलरेडी। अब तो मात्र एक गलती का इंतजार रहने वाला है आरबीसी को, बिकॉज वन सिंगल मिस्टेक फ्रॉम द साइड ऑफ H&M एंड दे कैन लिटरली कन्वर्ट द होल गेम टू देयर फेवर। क्योंकि जो यहाँ पर लीड है इनकी ये इतनी ज़्यादा बड़ी है कि H&M को बिल्कुल जद्दोजहद करनी पड़ जाएगी टू वो इवन पुश यू नो होप, या टू इवन होप टू गेट टू द इक्वलाइजर। बट ये जो कोशिश आ रही है सॉन्स की, दिस इज सस्पेक्टेड निम्स व्हाट। तो इंतजार किया जरूर था वहाँ पे। एचएनएम का डिसीजन काफी अच्छा था वहाँ पे पुश करने का। व्हाट मेड देम फॉल बैक। अब देखिए निम्स स्मार्ट गेम खेल रहे हैं यहाँ पे एंड लिटिल डज सॉन्स हैव एनी आइडिया अबाउट इट कि निम्स का पोजीशन क्या है। ये आई गेस वो एक राउंड हो सकता है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वहाँ पे। चलिए देखना ये कि निम्स निकाल पाते या फिर नहीं। स्पेशल बॉलीज जितना यूटिल है सबका इस्तेमाल किया जाएगा। वो पोजीशनिंग अब पता है उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल में है। निम्स ओह moves but that's going to be Sons comes up on top and finally
एक ब्रीदिंग राउंड लेके आएंगे अपनी टीम के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल था ये राउंड उनके लिए, एंड वो सिक्योर भी कर रहे हैं। टाइमिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा बुरी रही यहाँ पे फॉर द साइड ऑफ आर बॉयज़, बिकॉज वो देख रहे थे, सही दिशा में देख रहे थे निम्स, लेकिन उनको कोई झलक मिल पाती इसके पहले वो टर्न अराउंड हो गए, एंड इट जस्ट मेड थिंग्स लकी फॉर द साइड ऑफ H&M, बट ओह, ये लक की कड़ी तो चलती ही जा रही है। बिल्कुल तीसरा राउंड भी सिक्योर किया उन्होंने। आरबीसी को बस एक राउंड चाहिए, and वो उस एक राउंड के लिए कितना ज्यादा सताया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है। बट आई गेस आरबीसी दे गोना क्लोज इट हियर एंड हियर। क्रूशियल है ये राउंड अगेन, बिकॉज अब अगर लेट को किया ये राउंड तो H&M सिर्फ राउंड भी नहीं मिलेंगे बट कॉन्फिडेंस भी प्राप्त करेगी। राइट प्रेजेंट देयर, एक फ्लैग निकाला, फॉल बैक कर जरूर रहे, बट क्या वो ट्रेड निकाल पाएंगे? जी नहीं, एलके वाओ। एक और फ्लैग निकाल के लेके जाएंगे। सील द डील। 9-3 का ये स्कोर। बैड बॉयज फाइनली जो विक्ट्री उन्हें चाहिए थी वो उन्हें मिल जाने वाली है यहाँ से। काफी ज्यादा एट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लगा जरूर था कि H&M कमबैक कर सकती है, बट आई गेस उनके फेथ में वो लिखा नहीं था, एंड बैड बॉयज वो एक राउंड चाहिए था, वेट किया, वो जानते थे कि पुश कर रही है बार बार की तरह से, तो उस चीज का फायदा उठा के वो राउंड सिक्योर किया उन्होंने। एग्जैक्टली, बीइंग ऑन द टी साइड थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हुई थी ज़रूर से आरबीसी को, बट दे डिड फाइंड आउट देयर फुटिंग एंड इवेंचुअली गॉट द होल मैच फॉर देमसेल्व्स। अगले राउंड में अपनी जगह बना चुके हैं, सो कंग्रेचुलेशंस टू देम, बट H&M, वेल, well fought, valiant effort from their side, but I guess that's all they could deliver. However, we have more to deliver, which we will be delivering after this short little break. See you on the other side.
Welcome back, ladies and gentlemen. You guys are watching ROG Showdown series by ROG India and Intel. This is me, Darshita. Alongside me, it's going to be Hannah, and we are back again after this very short break that we were talking about. And it's high time that we, start with the third map of the day. बहुत ज्यादा मजा आया है शुरुआती दो मैप्स में आना, बट कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है थर्ड मैप को लेकर? Well, काफी dicey रहा है. First one was very neck to neck. The second one was very one-sided. But I think I'm hoping for one more one-sided now. क्योंकि ओके. जितना ज़्यादा one-sided matches आएंगे, उतना ज़्यादा हमें filtered skill मिलता जाएगा and उतना ज़्यादा हम level up करते जाएंगे into the next matches. आई मीन या दैट्स गोना बी ट्रू. अगले आने वाले राउंड्स में जो इंटेंसिटी है इन मैचेस का वो और भी ज्यादा बढ़ जाने वाला है, बिकॉज राउंड वन में काफी ज्यादा चीजें होती है दैट हमें काफी ज्यादा वन साइडेड डोमिनेशन देखने को मिलता है, बट वेन एवर इट गोज डाउन टू राउंड टू, राउंड थ्री और द ग्रैंड फाइनल्स इटसेल्फ, हम तब जाके देखते हैं कंपटीशन लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका होता है एंड वहां पे जाके मुश्किलें प्लेयर्स को बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती है. बट आई गेस बारी आ चुकी है कि हम डायरेक्टली चलेंगे मैच की तरफ. वंस अगेन अनदर ओवरपास जो कि हम विटनेस करने वाले हैं. दिस टाइम वी हैव टीम Okidoki. Nice name though. Going up against the sides of Team KZK. Well. काफ़ी aggressively यहाँ पर खेलना चाह रही है टीम मोकिडोकी. ऑलरेडी अपने आप को टनल के सामने प्लेस कर लिया है. डैमेज काफ़ी अच्छे से डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दैट्स स्टिल नॉट इनफ टू कीप देम होल्डिंग. ओके, नाउ दिस वन इज अच्छी शुरुआत Okidoki. पहला राउंड मिल चुका है ऑलरेडी. वी हैव जिमी मॉन्स्टर एंड सैवेज. ओह ओके, ऑलराइट, वी हैव जिमी मॉन्स्टर एंड सैवेज हियर. ऑन द अदर साइड वी हैव शैडो एंड रन. एंड आई मीन सैवेज एंड जिमी मॉन्स्टर तो ऐसे खिलाड़ी जो पहले भी सुने हुए, पहले भी देखे हुए चेहरे ही है, दोबारा से यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं. गोइंग डाउन टू द सेकंड राउंड दिस टाइम ओवर. देखते हैं कि क्या प्लान हमें देखने को मिलता है केजीके की तरफ से. उसके लिए प्रयास तो किया जा रहा है, बट जिमी मॉन्स्टर का पोजीशनिंग देखिए. दरवाजा जैसे ही खुलेगा बहुत प्रॉब्लम्स जाएगा दोनों भी प्लेयर्स के लिए. जिमी मॉन्स्टर फाइंड्स बोथ ऑफ देम, शट देम डाउन. एंड सेकंड राउंड फॉर द साइड्स ऑफ Okidoki. एब्सोल्युटली एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस आउट हियर. जिस तरह से जिमी मॉन्स्टर ने अंदाज़ा लगाया था इस चीज़ का, एंड जिस तरह से उस अंदाजे पे अपने आप को सिचुएट करके रखा, लोकेट करके रखा, एंड वाज एबल टू वर्क विद दैट गेम सेंस, that was pretty impressive. And somewhere we did see KZK actually just falling right into the traps. या वो जानते थे कि क्या पुश होने वाला है. उन्होंने रीड काफी अच्छे से कर लिया, तो वो बस वेट कर रहे थे. एंड हम जानते थे कि जैसे ही दरवाजा खुला, वी न्यू व्हाट द सिचुएशन वुड बी लाइक. एंड वही चीज होती हुई इंस्टेंटली फायर किया गया वहां पे, तो वो भी खिलाड़ियों को टेक डाउन किया. आई थॉट कि 1 for 1 ट्रेड मे भी आएगा वहां पे. जैसे ही डोर ओपन हुआ, मेरे को लगा था कि केजे की तरफ से एक प्लेयर को टेक डाउन करने के बाद एक ट्रेड तो आ ही जाएगा करके. बट जी नहीं, वो चीज भी नहीं होती थी. दोनों भी प्लेयर्स को जिमी मॉन्स्टर ने वहां पे पनिश किया. सेकेंड राउंड सिक्योर कर लिया Okidoki ऑन अ वेरी गुड स्टार्ट. एंड ऑनेस्टली आई वुडंट बी इन शॉक अगर तीसरा राउंड भी यहाँ से Okidoki निकाल के जाती है, बिकॉज कॉन्फिडेंस भी है एंड चीजें काफी ज्यादा अच्छी लग रही है उनके लिए. Exactly, and जिस तरह से ओकीडोकी खेल रही है, I would actually want to see them, take this by flying colors. But कहीं ना कहीं, I obviously want to see KZK start, getting their grasp onto the game as या well. But ये जो रीड था, उसने काफी ज्यादा एक expertise level already showcase कर दिया है ओकीडोकी का. So I do think that is gonna be one of the teams that we see going much further than what we've already seen. Yeah, might just be the case. But for now, दो matches आज के already हो चुके थे and we are already on the third match for the day. We have some amazing teams, honestly. I mean, जिस तरीके का performance and caliber ये players showcase कर रहे हैं, और भी काफी अच्छी टीमें हमें अभी भी देखनी बाकी है. So I'm quite excited for the upcoming matches as well, because we just have witnessed what 6 teams by now. So we have a lot more teams to witness for today's day, and you talk more about them. Well, I mean, we do have quite a lot of impact that is gonna come rolling into this, series. But yeah, I mean, जो हमारा अभी का मैच होने वाला है, again it is overpass, and overpass में जिस तरह का हमने explosive performance पिछले मैच में देखा, I think वैसा ही हमें यहाँ देखने को मिल सकता था. पिछली बार remember there was an attempt to try and make the barrel move, but वो हो नहीं पाया था. This time around, I Yep, think we might be able to see that. might just be the case this time over again. KCK स्लो अप्रोच है एज यूजुअल. गलती नहीं करना Yeah. चाहते हैं. जानते हैं कि इस बार की जो गलती है वो काफी ज्यादा महंगी पड़ेगी एंड इम्पैक्ट बहुत ज्यादा
बना के जाएगी ओवरऑल स्कोर लाइन पे। बट ओकी डोकी कॉन्फिडेंट। लास्ट टाइम ओवर इसी दरवाजे की खुलने से 2 प्लेयर्स को टेक डाउन किया गया था, बट जिमी अब दिक्कतें उनके लिए हो सकती है। तो है मैं इसको देगा नहीं, बट दूसरा वाला ग्रेनेड जरूरी देगा। कितना ज़्यादा लो कर दिया जा चुका है, रॉनिन को टेक डाउन किया वहाँ पे सैवेज ने। आखिरी बचे हुए खिलाड़ी है, चलिए उन्हें भी टेक डाउन किया जाएगा जिमी की तरफ से। एंड तीसरा राउंड आता है वो ओकी डोकी के लिए। वेल जिमी मॉन्स्टर जिस तरीके से दिक्कतों का सामना करते हैं, सामने वालों को दिक्कतें हो जाती हैं इनकी वजह से। He is बिल्कुल। literally creating chaos for the side of KZK, and Okidoki seems to be doing much more than just okay, you know. Yep, that's gotta be true. केसी के फिर दोबारा दिस टाइम ओवर वो मॉन्स्टर पुश करने का प्लान कर रहा है। हर बार वो अप्रोच नहीं था उनका, बट दिस टाइम ओवर दे प्लान कि वो मॉन्स्टर की तरफ से आगे बढ़ना चाहेंगे। नाउ दिस कैन बी वेरी वल्नरेबल फॉर देम बिकॉज़ अब देखिए यूटिल के नाम पे केवल एक स्मोक है उनके पास, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहने वाला है। सो दिक्कतें बहुत ही ज़्यादा होगी। स्मोक थ्रू यहाँ पे सैवेज ने शट डाउन किया रॉनिन को। आपके बचे हुए हैं शैडो और कुछ कर पाएंगे सिचुएशन में, बिल्कुल नहीं। सैवेज उन्हें भी शट डाउन करेंगे। 4-0 का ये स्कोर, काफ़ी अच्छा लीड फॉर द साइड्स ऑफ ओकिडोकी। वेल जिस तरह से अभी के लिए ये गेम चल रहा है दर्शिता, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अपने लिए एक राउंड भी निकाल पाना काइजोकू के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। जिस तरह से इस पूरे मैप का अंदाज़ा लगाकर बैठी है ओकिडोकी की टीम, यहाँ पर हर एक कदम आग का दरिया है, बिल्कुल इस मॉली की तरह, जिस तक पहुंचने का भी मौका नहीं मिला काइजोकू को। They got destroyed before they could reach the destruction. सैवेज प्लेसमेंट देखिए आप उनके क्रॉसर का। पहला स्प्रे डाउन किया, इंतजार किया, वेट किया, अपने आप को स्टेबल किया, क्रॉसर को स्टेबल किया, प्लेसमेंट परफेक्ट किया वापस से, एंड फिर दूसरे प्लेयर को टेक डाउन किया। टुक हिज गुड ओन टाइम टू डू दैट। 5-0 ओकीडोकी। क्या प्लान है इनकी? क्या 9-0 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? 4 राउंड चाहिए 9-0 के लिए, बट दिस टाइम ओवर सैवेज गलती करेंगे। और जैसे ही मौका मिला रॉनिन को उसके ऊपर कैपिटलाइज करने में, अब जाके चांसेस बहुत ज़्यादा कम लग रहा है मुझे 9-0 के, बट जिमी मॉन्स्टर ने ऑलरेडी वहाँ पे रॉनिन को पनिश कर दिया। प्रॉब्लम हो सकती है तो सही वो फ्लैग, बट क्या फ्लैग निकाल पाएंगे? जी नहीं। जिमी मॉन्स्टर को वहाँ पे टेक डाउन किया, फाइनली पहला राउंड जो कि वो केजी के खाते में जाता हुआ। Well, Casus curse is a real thing. I can tell ट्रू that ट्रू। now. The moment we felt like it's gonna be a 9-0, Kaizoku was like we're still in the game, and a lot of respect to that. जिस तरह से काइजोकू ने अपने लिए फाइनली एक राउंड निकाला है, आई थिंक कॉन्फिडेंस बूस्ट काफी अच्छा मिल चुका होगा टीम को, एंड अब कहीं ना कहीं अपने आप को दोबारा से इस गेम में स्थापित करने का जो मौका मिला है काइजोकू को, that should be bringing flashy colors for their side. But this is a terrible spot. Like Okidoki बार-बार यहाँ पर conceal कर रही है काइजोकू. I don't know why they're going on attempting the same thing बार-बार. Yep, and इस बार आप देखिए एक ऑफ है हाथ में। Savage is right prepared with that bomb. Grenade is again going to give a lot of damage. अपने ही टीममेट को यहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डाला जरूर गया। एंड आपके अपोनेंट्स तो वेट ही करते हैं कि आप एक गलती कीजिए, हम तो उस पर कैपिटलाइज करने ही वाले, हम तो बैठे ही उस चीज के लिए यहाँ पे। 6 का स्कोर लाइन ओकीडोकी टू अ गुड स्टार्ट। आई गेस जितना डैमेज वहाँ पे दिया गया था ऑलरेडी रॉनिन को, वो अपने ही टीममेट की ग्रेनेड से दिया गया था, एंड उस चीज़ के ऊपर ओकीडोकी ने काफ़ी अच्छे तरीके से कैपिटलाइज किया। 6 का ये स्कोर लाइन है। ओकीडोकी अच्छा खासा लीड मेंटेन करके चल रही है, बट देखना ही कि केजी के क्या कुछ कर पाएगी। आखिरी राउंड में ये स्विच के पहले का सैवेज शॉट लेने की कोशिश जरूर की, बट चलिए नाकामयाब होते हुए इस बार ओवर। और जिमी मॉन्स्टर को देखिए आप कितना ज़्यादा What? अग्रेसिव से टच किया है। सैवेज को वहाँ पे डिनाई किया। जिमी मॉन्स्टर आगे आएंगे, नॉट जस्ट वन बट 4 प्लेयर्स। माय गुडनेस, जिमी मॉन्स्टर, there's a reason he's being called a monster by himself। 7-1 and ओकीडोकी पहला हाफ एक बहुत अच्छे लीड के साथ खत्म करेंगे। Goodness gracious, what did we just see, Darshita? Aggression, आई yes. नो। This was uncontrolled aggression. बिल्कुल almost spawn तक पहुंच गए. And Kaizoku के players, they were literally caught like off guard. हाथ में यूटिल पकड़े गए हैं यहाँ पर काइजोकू के players. यप। This time around being on the defensive counter terrorist side पे किस तरह से खेलते हुए दिखाई देंगे काइजोकू के players, that's something I want to see. Never mind. माय गॉड, जिमी मॉन्स्टर स्किल पे बैठा है वो यहाँ पे। एक डेथ, 10 किल्स 1 डेथ। देखिए कितने ज़्यादा शॉट्स को वहाँ पे मैसअप किया गया, बट जिमी मॉन्स्टर सेकंड टाइम जब एम करने गए एग्जैक्ट हेडशॉट लगा गया वहाँ पे।
I mean, as I said, right, there's a reason he has named himself a monster, and you can see that clearly on your screens. 8-1, एक Yep, केवल राउंड चाहिए, मैच पॉइंट की तरफ ऑलरेडी आगे आ चुके हैं. एंड आई गेस डील को यहीं पे सिक्योर कर देंगे. सैवेज एक फ्रैग लेंगे, जिमी मॉन्स्टर अनदर 9-1, ओकी डोकी सिक्योर कर जाएंगे ये मैच में. कास्टर कर्ज लगा जरूर वहां पे आना जब हमने बोला कि 9-0 हो सकता है, एंड वो 9-1 हो गया. बट चलिए, मैच सिक्योर करना इंपॉर्टेंट था उनके लिए, एंड वही चीज वो करके भी जाएंगे. exactly. And एक beautiful victory अपने नाम ले जा चुके हैं जिमी मॉन्स्टर and team. They have done exactly what they came to do. And I think they're gonna be pretty satisfied with their performance. I do want them to change their name though. Okie dokie, that does not do justice to the kind of gameplay they're bringing into this. True. But yeah, competition tough होता जा रहा है and कहीं ना कहीं इनके अगले rounds बहुत ज़्यादा interesting होंगे देखने के लिए. इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, आई वुड से टफ बिकॉज टीम्स काफी ज्यादा अच्छी है. बट हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के ऊपर, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड विल सी यू गाइस अराउंड विद अनदर मैच. अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड विल बी राइट बैक.
and welcome back everyone to ROG Showdown series. We're back with the fourth match of the day. Darshita, how excited are you for this one? पिछले जो तीन थे, we got a Yeah, neck to neck and then we got one-sided. What are you expecting I now? am very excited. I mean, honestly, with the fact that we have two amazing teams going up against each other, I'm quite excited. And हाँ, intense match बहुत ज़्यादा होने because ये दोनों teams को हम already देख चुके हैं. So I'm excited for this round, which is just about to start. Also for the fact कि map कौन सा रहने वाला है, because I'm done with overpass. I was already done with nuke. I want an inferno now. Not really sure if I'll get We one. got Oh an well, I am inferno! blessed with one. So Well, it seems like Team Lucky से ज़्यादा lucky आप हैं आज के दिन दर्शिता. जो आप चाह रही है हो रहा है. Now let's see if the team that wins is also gonna be one that you pick. And in the first round, I'm gonna take my time to be like, दर्शिता, दोनों टीम्स को हम खेलते हुए देख चुके हैं. अब आपको एक पिक करनी पड़ेगी. इसमें आपको क्या लग रहा है कौन जीतेगा? well, I'll go further with the sides of Team Okie Dokie, honestly. Still say that they have a good chance of winning, but with shot coming up from the sides of Savage to seal the deal for this round. Okie Dokie gets the very first round for themselves. एक अच्छा स्टार्ट मिलता हुआ सिबाती फ्रैग काफी अच्छा मिला था वहां पे इनको टेक डाउन किया था उसके बाद तो आखिरी बच्चे हुए खिलाड़ी थे बट चलिए ओकी डोकी ऑन टू अ गुड स्टार्ट एज आई सेड still believe they have a great chance of winning but एक कुछ आता हुआ not because they expect that satisfying one satisfying the second one as well ये पुश बहुत ज्यादा कामयाब होगा ओकी डोकी gets the second one Well, I mean, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. मैं तो नाम के हिसाब से टीम चूज करती हूँ. So मैं और आप दोनों ही सेम टीम चूज करने वाले हैं यहाँ पे. And I guess Okie Dokie has all our wishes. But RBC किस तरह से इनको fight back करेंगे, that's something that's going to be interesting to watch as well. Util का काफी ज़्यादा use, लेकिन उसके बावजूद there wasn't enough coordination this time around from the side of Okie Dokie. give it to the sides of our boys honestly because जिस तरीके से वो इनिशियल यूटिल का यूज किया है वो फ्लैश काफी ज्यादा परफेक्ट है नॉट जस्ट ये नहीं कहूंगी कि वो फ्लैश का परफेक्ट इस्तेमाल हुआ ऑन योर एनिमीज बट हाँ वो एक जो डिस्ट्रैक्शन बना वहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प किया कोऑर्डिनेशन ब्रेक करने में वरना दोनों के प्लेयर्स ऑलरेडी डिसाइड कर चुके थे कि उनका क्या रोल रहेगा उस एंटायर राउंड में बट फॉर नाउ 2-1 का सिचुएशन है आरबीसी ने एक राउंड तो निकाला जरूर है बट ये क्रूशियल रहेगा राउंड दोनों की तरफ से पिंचर करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे साइड के अंदर मौजूद एक प्लेयर पिट की तरफ भी आपको देखने को मिल जाने वाला है सो होल्ड मैं कहूंगी काफी ज्यादा अच्छा है यहाँ पे टीम बीसी का बट उससे ब्रेक थ्रू क्या कर पाएगी वो अभी एक सवाल है अंडर विंडो चेक करना बहुत अंडर बालकनी चेक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बिकॉज अगर ये पोजीशन मिस कर जाते हैं फिर प्रॉब्लम हो गया आप देखिए किस तरीके से वो क्रॉस को भी होल्ड किया जा रहा है Exactly. कहीं ना कहीं ये फाइट बहुत ज़्यादा क्रूशियल थी फॉर द साइड ऑफ ओकी डोकी बट दे हैव लॉस्ट बोथ देयर प्लेयर्स इन द फाइट एंड दोबारा से अपने आप को इक्वलाइजर पे ला चुके हैं यार बॉयज कुछ तो गड़बड़ हो रही है दर्शिता या फॉर नाउ ओके डोकी हाँ शुरुआती दो राउंड्स काफी अच्छे निकाले गए थे बट उसकी तरफ से आरबॉयज से जो कमबैक आया है काफी ज्यादा अच्छा था वो आई गेस ओके डोकी अभी भी जितना ज्यादा अग्रेसिव खेलेगी उतना ज्यादा अच्छे फ्रैग्स वो निकाल पाएगी इनिशियली बट लेट्स सी इफ दे आर एबल टू डू दैट फॉर नाउ अर्ली ऑन ग्रेनेड चाहता हुआ दिस टाइम ऊपर कंप्लीटली अपने डीगल्स के ऊपर अलाई किया जाएगा सो लेट्स सी वो डीगल्स के साथ कुछ शॉट कनेक्ट कर पाते हैं फिर एल के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं ऑलरेडी बट एंगल जिमी मॉन्स्टर के पास रहने वाला है एल के कैपिटलाइज करेंगे आखिरी बचे हुए खिलाड़ी है सैवेज 1v2 विद एन इन हिज हैंड एक शॉट कनेक्ट किया बहुत प्यारा सेकंड प्लेयर सेट है वहां पे बट सैवेज क्या कुछ कर पाएंगे अभी भी एक सवाल साइड पे तो गिव अप ऑलरेडी कर चुके हैं काफी ज्यादा अच्छा अभी भी कोशिश कर रहे हैं सैवेज की वो कनेक्ट कर जाए अगर ये कनेक्ट कर जाते हैं बहुत अच्छी क्लिप भी इन्हें साथ में मिल जाएगी तो लेट्स सी इफ ही इज एबल टू डू दैट द रीलोड बोथ ऑफ द एंड्स बॉम्ब प्लांट करने के लिए आगे जाएंगे फिलहाल बेट आउट करेंगे प्लांट को अभी भी प्लांट किया नहीं है बात करें 40 सेकंड है काफी ज्यादा अच्छा टाइम है उनके ऊपर बट अब केयरफुल रहना पड़ेगा इनके टेक डाउन करेंगे सैवेज को एंड दैट्स गोइंग टू बी द थर्ड वन इनसाइड द पारबीसी पहले दो राउंड बिल्कुल आसानी से ओकी डोकी के पलड़े में आते हुए दिखाई दिए दर्शिता बट सिंस देन देयर हैज बीन नो मोर कैपिटलाइजेशन आर बॉयज ने बिल्कुल रोक लगा दी है ओकी डोकी के खाते पे एंड इट सीम्स लाइक विद दिस सीज्ड अकाउंट देयर इज नॉट मच दैट कैन बी डन फ्रॉम देयर साइड जो अग्रेशन दिख रहा है फ्रॉम द साइड ऑफ आर बॉयज इन दिस पर्टिकुलर राउंड दिस इज स्कैरी
Yep. LK being brought down to 76 of his health though. ध्यान रखना पड़ेगा. साइड एंट्री एक प्रॉब्लम बन रहा है ओके डोकी के लिए. बट यू नो ऑनेस्टली अगर इस हाफ में एक और राउंड भी सिक्योर कर लेता है तो अगले हाफ में जाके एक अच्छा खासा फायदा उन्हें मिल जाएगा. बिकॉज अगेन बीइंग ऑन द सीटी साइड आप जानते हैं कि आपके लिए चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाने वाली है. होल्ड फिर दोबारा काफी ज्यादा सिमिलर है आरबीसी का. आप देखिए पिछले राउंड में भी हमने कुछ ऐसा ही होल्ड देखा था जो अंडर बालकनी वाला होल्ड था. बट उसके अलावा जो एक प्लेयर के अंदर खेल रहा है उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. पिट की तरफ जाने के लिए मजबूर किया निम्स राइट अराउंड. दूसरे प्लेयर का ध्यान रखना पड़ेगा. निम्स को टेक डाउन किया वहां पे. एलके फाइंड्स वन इज बीइंग ब्रॉट डाउन टू हाफ ऑफ हिज. सा ध्यान रखना पड़ेगा यहां पे. साइड ये फ्लैग निकालना काफी इंपॉर्टेंट है. निकाल के जाएंगे एंड फाइनली एक इक्वलाइजर आता हुआ 3-3. Well, we were expecting for a cutthroat one on this one and वैसा ही परफॉर्मेंस डिलीवर होता हुआ दिखाई दे रहा है. दोनों ही टीम्स अपने कैलिबर को जिस तरह से यहाँ पर बार बार सर्टिफाई करती जा रही है अपने परफॉर्मेंस से, दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग. दिस टाइम अराउंड दो एक अच्छा ओपनिंग फ्रैग मिल चुका है ओकीडोकी को एंड विद दिस दे माइट जस्ट बी एबल टू टेक आरबीसी डाउन. भाई मैं जस्ट कहने वाली थी कि सैवेज अपने आप को बेट कर सकते हैं अपने टीममेट के लिए ताकि वो राउंड सिक्योर करे. बिकॉज ही वाज बैरली सर्वाइविंग. एक एचपी पे ही थे वो. अपने आप को एक इजी बेट बना के अपने टीममेट को हेल्प कर सकते थे राउंड सिक्योर करने में. बट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी वहां पे. एग्जैक्टली जैसा आप पहले बोल रही थी, जिमी मॉन्स्टर का नाम जिमी मॉन्स्टर क्यों है ये हमें पता चल जाता है कई बार उनकी गेम प्ले में. It's gonna be true. This time वो इकोनॉमिकली उसका अच्छा राउंड नहीं है क्या आरबीसी के लिए. एंड वो स्पैम देखिए आप स्मोक के अंदर. एलके को टेक डाउन किया. CS2 में ये एक चीज होगी जैसे आप स्पैम करते हो जो बुलेट ट्रेसेस है वो स्मोक के अंदर जो गैप क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम जरूर देता है प्लेयर्स को जो स्मोक के अंदर होल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं पोजीशन होल्ड करने का ट्राई कर रहे हैं. बट चलिए इनिशियल फ्रैग फिर दोबारा से मिल चुका है ओकीडोकी को. एंड अगेन निम्स का पोजीशन पता नहीं. आप देखिए किस तरीके से होल्ड कर रहे हैं. हल्का सा पेशेंस अगर रखते तो दोनों भी प्लेयर्स को एक साथ टेक डाउन करते. बट डोंट थिंक वो चीज होगी. परफेक्ट टाइम टू गो बिहाइंड. एक प्लेयर को टेक डाउन किया. टीममेट को वहां पे मोलोटॉव से दिक्कत दी है. ये राउंड बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. बिल्कुल ही होगा. फॉर 4-3-5 जा सकता था ये ओकीडोकी के लिए. बट सैवेज जो अपने टीममेट को वहां पे नीट के थ्रू जला दिया था वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया उनके लिए. निम्स वो फ्रैग निकाल के 4-all के स्कोर लाइन से पहला हाफ खत्म करेंगे. वेल जस्ट एज एक्सपेक्टेड ये पहला हाफ बिल्कुल आधे आधे राउंड्स दोनों तरफ देकर गया है. एंड विद दिस स्प्लिट स्कोर कहीं ना कहीं दोनों ही टीम्स एज वेल एज दोनों ही टीम्स के फैंस are expecting to see something unexpected going forward. या क्रूशियल राउंड है ये तो. लीड मिलेगा जिस भी टीम को ये राउंड सिक्योर करके जाएंगे. होल्ड अच्छा है. Plus फेट बैक करते हैं अगर या इकोनॉमी भी मिलेगी. होल्ड करते हैं अगर तो आई गेस बेटर रहेगा बिकॉज पुश करना नॉट रियली श्योर इफ द परफेक्ट आंसर रहेगा. प्रैक्टिस काफी ज्यादा अच्छे है बट ये फ्रैग निकालना क्रूशियल है. निकालेंगे सैवेज एक परफेक्ट हेल्प बनती है अपनी टीममेट के लिए. अब तो आई गेस दोनों भी तरफ से पिंचर किया जाने वाला है. निम्स का यहाँ से बच के निकल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल. सैवेज फाइंड्स बोथ ऑफ देम एंड इसी के साथ ये राउंड भी सिक्योर करेगी टीम ओकीडोकी. काफ़ी अच्छा डिसीजन मेकिंग यहाँ पर जिमी की तरफ से कि अर्ली ऑन आइसोलेट करके एप्स वाला फ्रैग कंसील कर लिया ताकि बाद में दोनों की दोनों जो प्लेयर्स हैं ओकीडोकी के वो कन्वर्ज हो सके ऑन टू द प्लेयर कमिंग इन लेटर एंड उसको अच्छे से फिट कर सके. माय गुडनेस बहुत अच्छा एंगल था वो. बहुत ज्यादा अच्छा एंगल था. Yep. इसका बहुत अच्छा वो शॉट हमें देखने को मिला वहां पे. बट चलिए उनको टेक डाउन किया. एक ट्रेड निकाला जरूर है. अभी भी सिचुएशन पूरी तरीके से मैं कहूँगी ओकीडोकी के हाथ में नहीं है जब तक ये फ्रैग जिमी मॉन्स्टर नहीं निकालेंगे. बट चलिए 6-4 ओकीडोकी एक अच्छा लीड. केवल 3 राउंड चाहिए यहाँ पे ये मैच खत्म करने के लिए. This is gonna be a much smoother ride for the side of Okidoki going forward from here क्योंकि ऐसा लग रहा है कि coming into the counter terrorist side काफ़ी ज़्यादा अपने आप को well equipped पा रहे हैं Okidoki के players. But we'll have to see what the adjustment from the side of RBC is gonna be. Yep, for now स्लोली एंड स्टिली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. निम्स ऑलरेडी बालकनी तक आ चुके हैं आगे. ऐसा डिफिकल्ट हो सकता है बट सैवेज अभी भी प्रिपेयर्ड है उस चीज के लिए. आप पोजीशनिंग देखिए उनका.
जिस तरीके से वो वेट कर रहे एक प्लेयर का वॉक इन करने के लिए, जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्लो अप्रोच है फ्रॉम द साइड ऑफ आरबीसी। निम्स के लिए ये चीज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, बिकॉज निम्स जैसे ही पीक करेंगे वो जो हल्का सा पिक्सल विजिबल रहेगा, उसका फायदा सैवेज को मिल सकता है। बट हाँ, वो जो अपर हैंड एडवांटेज है वो अभी भी आरबीसी के पास रहने वाला है। देखना है कि क्या कर पाएंगे। फिलहाल के लिए एक अच्छा फ्लैश, अच्छा स्मोक भी आता हुआ। 30 सेकंड बचे हैं, क्या प्लान से आगे आएंगे इनके। टेक डाउन किया सैवेज ने, एक सिर्फ एक नो को भी वहां पे 7वां राउंड सिक्योर करेंगे। अब उम्मीदें आर बॉयज की तरफ से थोड़ी थोड़ी Very close to victory. Okie dokie is finding themselves very close to victory. बट यहाँ से हर एक कदम एक मील की तरह लगने वाला है, बिकॉज एवरी सिंगल राउंड इज गोना बी इम्पोर्टेंट। क्योंकि क्लोज इन करने का जितना ज़्यादा मौका यहाँ पर आरबीसी को मिलेगा, उतना ज़्यादा चीज़ें डिफिकल्ट होती रहेंगी ओकी ओकी डोकी के लिए। ओ, स्पॉट कर लिया है जिमी मॉन्स्टर ने, बट बैर अच्छा बेस्ट हैंडेड पोजीशन, चले गए फाइट। perfect position नहीं था वो around in that situation. So was the case with Savage. I guess जिमी अगर थोड़ा सा पीछे खेल लेते तो शायद सिर्फ इन्फॉर्मेशन के साथ वो पीछे आ सकते थे वहां पे। इन्फॉर्मेशन लेके शायद एग्जैक्टली। अपने टीममेट के पास वापस अगर आते तो चीजें अलग होती उनके लिए। बट चलिए, अभी भी लीड है ओकीडोकी के पास, केवल 2 राउंड चाहिए उन्हें टू एंड दिस मैच, एंड केवल 2 राउंड चाहिए आरबीसी को टू टेक इट टू एन इक्वलाइजर। जिमी के पास एक ऑप, क्या मैं देख पा रही हूँ, जी हाँ, जिमी के पास एक ऑप रहने वाली है वहां पे। अब इससे ब्रेक थ्रू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आप पोजीशनिंग देखिए एलके की, काफी ज्यादा एग्रो जाने की प्रयास कर रहा है, बट सैवेज चले ही फाइंड वन ऑन टू निम्स। सिचुएशन काफी हैंडी है ओकी डोकी के लिए टू गेट ऑन टू द मैच पॉइंट। आखिरी बचे हुए खिलाड़ी है एलके। एल के जिस तरह से खेल रहे हैं अभी के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि पलड़ा भारी रहने वाला है ओकी का। एंड ये लीजिए, दोबारा फंसे जरूर थे, बट स्टिल अपनी फाइट को काफी अच्छे से अंजाम में ला पाए। थोड़ा ओवर एक्सटेंडेड दिखाई दिया मामला from the side of Savage, but Jimmy Monster will be able to close this off very, very beautifully. पहला शॉट जब मिस किया गया यहाँ पे जिमी की तरफ से, थोड़ा सा डर जरूर लग रहा था मुझे उनके लिए। बट चलिए, कोई दिक्कत नहीं, Yep. राउंड सिक्योर क्या इंपॉर्टेंट था। एंड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स आप बात कीजिए, ओके डोकी कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है। आप देखिए चीज है उनके पास, 2 ग्रेनेड्स है, 2 फ्लैशेस है, सब कुछ रहने वाला है उनके पास। एंड जिमी मॉन्स्टर विद द परफेक्ट फ्रैग। आखिरी बचे हुए खिलाड़ी है निम्स, नॉट रियली श्योर कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलने वाला है। एंगल सेट किया जा चुका है जिमी मॉन्स्टर की तरफ से, अनदर वन फॉर जिमी, एंड दैट्स गोना बी ओकी डोकी। आई थिंक मैंने ये चीज की ओकी डोकी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई लग रहे हैं ना। एंड देखिए ओकी डोकी यहाँ से ये मैच निकाल के जाएगी। स्टिल से एक बहुत अच्छा ट्राई दिया उन्होंने वहां पे, कोशिश बहुत अच्छी थी, बट चलिए डील को क्लोज नहीं कर। Exactly. जिस तरीके से यहाँ पर जिमी मॉन्स्टर खेलते हुए दिखाई दिए, I'm definitely looking forward to seeing more of him. But yeah, this is gonna be an absolutely, unmatched game of the day. Like first match भी काफी ज्यादा close था, लेकिन जिस तरह का performance and जिस तरह का caliber match हमें इस match में देखने को मिला है particularly, that's beautiful. That's going to be true. काफी अच्छा परफॉर्मेंस दोनों ही प्लेयर्स की तरफ देखने मिला है। सो अगेन लेट्स सी कि और क्या ज्यादा यू नो चीजें हमें देखने को मिलती है। फॉर नाउ लेट्स जस्ट क्विकली टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, बिकॉज़ अगला मैच हम सेट कर रहे हैं। विल सी यू गाइस ऑन द अदर्स। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।
Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back once again to the ROG Showdown series by ROG India and Intel. It's me, Darshita. Alongside me, it is once again going to be Ahana, and we are all set, all prepared to dive in the semifinals number 2 for today. One step away from the grand finals. We are quite excited, but Ahana, how are you doing? And did you eat anything in the break? I mean, I don't want to leak the secrets. I ate sandwich. That's a secret. Nobody who heard this gets to leak the secret. But yeah, yeah. I wish I could have had tea like you, Darshita, though. The only tea I I mean, have all is the right, one I keep spilling. let's just get back in the game itself. Semifinals number 2. I am quite excited, honestly, because both of the teams, again, as we talked about it, right? जितना हमने बात भी किया था इस चीज के ऊपर कि मैचेस काफी ज्यादा इंटेंस थे एंड अब जैसे जैसे हम ग्रैंड फाइनल्स के तरफ बढ़ रहे हैं मैचेस और भी ज्यादा इंटेंस हो चुके हैं सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस मैच ऑनेस्टली Well, I mean, जिस तरह से first semi-final गया था, I don't think that there's, you know, a lot of discrepancy on what we all are thinking right now. This is going to be very close and yeah this is going to be very power-packed all through. oh Juggernaut wait and what Team NK. I mean are we really witnessing a vertigo today we started our day with witnessing the map of Nuke, and now that we are witnessing the Yup. semifinals number 2, we are witnessing the map of Vertigo, ladies and gentlemen, which I least expected. But let's see, to start things off, we are again having the side of TNK going up against the side of JGN. First tag rolls in. No, it does not. Yes, it does. Nospi gets taken down. It all Oh, goes down to one last remaining player though. Kerry being brought down to 68 of his health. A bit difficult to survive at this point of time. Going up the stairs like inviting his own death. कोशिश जरूर करेंगे आगे बढ़ने की बट देखना ये कि क्या सर्वाइव कर पाते बिकॉज मुश्किल अब बहुत ज्यादा होने वाली चलिए इन्फॉर्मेशन तो मिल चुकी है वो जानते हैं अभी कि मिड का अप्रोच नहीं लिया गया है आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं स्टेयर से बट फील इट्स गोना बी क्वाइट डिफिकल्ट स्टिल हैविंग हाई होप्स तो अभी भी लगता है कि क्लच कर पाएंगे बट जी नहीं केडी को टेक डाउन किया एंड पहला राउंड जो की टीम जेएनजी निकाल के जाएगी well, Juggernaut off with a great start for themselves, लेकिन काफी close इस मैच को लाने में कामयाब रहे थे टीम एनके. They did manage to pull the time along, लेकिन अपने players को ज़्यादा देर तक स्थापित नहीं रख पाए, and that somewhere did go down to the initial point that you were talking about. सारा बोझ एक कंधे पे आ जाए तो दिक्कत हो जाती है. Yep. Oh, nice cross from the side of Juggernaut. क्रॉस काफी ज्यादा अच्छा था वो जानते थे कि इस राउंड में उन्हें क्या करना है फास्ट अप्रोच आया जरूर था टीएनके की तरफ से बट got nothing in return for now at least 2-0 a good start for the sides of Juggernaut but TNK अब जाके कुछ सोचना पड़ेगा बिकॉज अगर ये राउंड भी गवा देते तो वंस अगेन इकोनॉमिक क्राइसिस तो होगा ही होगा बट उसके अलावा अगर आप देखो तो जो राउंड का एडवांटेज है वो काफी ज्यादा हो जाएगा ये स्मोक बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है पर बहुत ज्यादा है उनके पास उसके बावजूद टाउ किया गया वहां पे एक प्लेयर को टेक डाउन करने के लिए केडी गेट्स टेकन डाउन 1v1 पे 1v1 निकालना पड़ेगा ये राउंड निकाल के जाएंगे 3-0 एंड दैट्स गोइंग टू बी जेएनजी विद अनदर वन टीएनके अभी भी शून्य पे है That's true and कहीं ना कहीं जगरनॉट के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा पेन बांटते फिरते दिखाई दे रहे हैं फिलहाल के लिए. The way they are executing round after round, I mean प्रेशर तो बढ़ ही रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं एंड मेरे ख्याल से TNK का कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो रहा है. टैक्टिकल टाइम आउट द बेस्ट पॉसिबल एस्केप राइट नाउ बिकॉज अगेन इंपॉर्टेंट रहेगा राइट पिछले राउंड में आप देखिए जिस तरीके से स्टेयर्स के एग्जैक्ट एंट्रेंस पे वो स्मोक किया गया मुझे लगा था कि यू नो द साइड्स ऑफ टीके एंड उनके पास वो इन्फॉर्मेशन है कि एक प्लेयर बहुत ज्यादा क्लोज कंपाउंड में एंड वो स्मोक को जस्ट एज एन एस्केप यूज किया गया है बट जी नहीं हाँ ट्रेड आया जरूर था वहां पे बट आई डोंट थिंक कि वो ट्रेड इतना ज्यादा फायदेमंद भी था it all went down to a 1v1 जहाँ पे पेन was able to capitalize out of the entire situation 3-0 का ये स्कोर है टीएनके अभी भी एक सिंगल राउंड भी नहीं मिला है आना उन्हें एग्जैक्टली एंड इस बार स्प्लिट पुश के साथ में आगे बढ़ने की कोशिश है TNK की. Want to change things up, want to mix it up a little. बट दोनों ही तरफ reinforcement तैयार है जगरनॉट की तरफ से भी. This has to be a very, timed push from both the edges. एक तरफ से जैसे ही अटैक शुरू हो एंड ध्यान भटके वैसे ही दूसरी तरफ का अटैक स्टार्ट होना चाहिए. होल्ड काफी अच्छा था वहां पे दोनों में काफी ज्यादा लो किया गया था फ्रॉम बोथ ऑफ दीज एंड बट एक शॉट कनेक्ट करना पड़ेगा एंड कर जाएंगे पेन वहां पे वो शॉट कनेक्ट कर जाएंगे नॉट जस्ट हिम बट हिज टीममेट एज वेल
सिंगल डुएल्स के ऊपर रिलाई किया गया था इस राउंड में। टीएनके ने डिसाइड किया था कि सोलो फाइट्स लेंगे दोनों भी तरफ पे, ताकि आइसोलेट कर पाए प्लेयर्स को एंड दो प्लेयर्स एक साथ कुछ ना करे। बट वो चीज भी उनके फायदे में नहीं आती थी। टीम एनके थोड़ा सा दिक्कत का सामना कर रही है, बिकॉज आप जेजीएन को देखिए जिस तरीके से राउंड्स लेके जा रही है। देयर ऑलरेडी ऑन 4-0 एंड फर्स्ट हाफ में आई गेस दे हैव ऑलरेडी गॉट इनफ ऑफ व्हाट दे वांटेड। ओह नो, नो वे। जिस तरह शुरू होते ही राउंड को आरंभ पे पहुंचा दिया गया, दिस वॉज जस्ट नॉट मेंट फॉर द साइड ऑफ टीएनके। हम काफी ज्यादा एक क्लोज मैच एक्सपेक्ट कर रहे थे अभी, बट द वे जेजीएन इज प्लेइंग, आई डोंट सी अ लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर टीएनके। यू नो द बेस्ट थिंग दैट ही डिड वाज उन्होंने कंटेनर के राइट साइड से पिक किया था। पे उन्हें अपॉर्चुनिटी यप, मिला कि स्टेयर्स के जो नीचे बंदे हैं उन्हें टारगेट किया जा सकता है। इनके लिए रिस्पांसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एक प्लेयर के ऊपर तो कैपिटलाइज करेंगे, बट ये रीलोड उन्हें काफी ज्यादा नुकसान करने वाला है। कैडी उस चीज पे कैपिटलाइज करने के लिए आगे जरूर आए एंड कर भी जाएंगे, बट अगेन 1v1 कैडी क्या जानता है जी नहीं। शुरुआती में आइसोलेट किया, फिर दोबारा एक प्लेयर को, दो प्लेयर्स आगे बढ़े थे, बट ना द स्कोर लाइन स्टिल रिमेन्स 6-0 इन फेवर ऑफ जेजीएन। दैट्स ट्रू। टीएनके को यहाँ पर अभी तक कुछ भी मिल नहीं पाया है। It's their attempt to get the fights to 1v1 and then still not be the one who won. New ऑलराइट। tongue twister. 6-0 फिलहाल के लिए। ट्विस्ट जो करना है वो सपोर्ट रहने वाला है, बिकॉज 6-0 का ये स्कोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है टीएनके का। अभी भी मौका है, दो प्लेयर्स एक साथ आगे आ रहे हैं, ये चीज काफी ज्यादा अच्छी हो सकती है। क्लिक करके आगे जाएंगे, लेफ्ट साइड से पिक किया, इस बार डिनाई किया गया। चलिए एडवांटेज है नंबर्स का, कैपिटलाइज कर सकते हैं अभी भी। पेन और पिक करना पड़ेगा दूसरे साइड पे, बट Finally. चलिए फाइनली पहला राउंड जो उन्हें चाहिए था वो लेके जाएगी 6-1 टीएनके। बट आई वुड स्टिल से कि जेजीएन के पास जो लीड है उसे छीनने के लिए उन्हें बहुत कुछ करना है अब तक। ट्रू, काफ़ी ज़्यादा लंबी एक चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी यहाँ पर जेजीएन को फाइट ऑफ करने के लिए। एंड आई थिंक जिस तरीके से जेजीएन खेलती हुई दिखाई दे रही है, यू कैन एक्चुअली सी अ बिग डिफरेंस इन द रेंज ऑफ एबिलिटीज। एंड उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर मुश्किल चढ़ाई लग रही है टीएनके के लिए। Goes down to 1v1 again though. पेन क्यों किस तरीके से रुके हैं वहां पे, इंतजार कर रहे हैं। एंड आई गेस केडी हैज अ आइडिया अबाउट इट। वो जानते हैं कि क्या होने वाला है। ऑफ गार्ड कैच किया उन्हें जब वो यूटिल थ्रो करने का प्रयास कर रहे थे वहां पे। टाइमिंग बहुत ज्यादा परफेक्ट थी पेन की। 7-1 का ये स्कोर टीएन के। एक राउंड केवल निकाला है पहले हाफ में। अब अगर मैं बात करूं जेजीएन की, तो उन्हें सिर्फ 2 राउंड चाहिए ये मैच यहीं पे समाप्त करने के लिए। इफ एट ऑल वो दोनों भी राउंड उन्हें मिल जाते हैं, तो आप जानते हैं कि टीम एनके का जो सफर है इस आरओजी शोडाउन सीरीज भुवनेश्वर में, वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। ट्रू दैट। एंड हमें मिल जाएंगे हमारे नेक्स्ट फाइनलिस्ट्स फॉर दिस। या कहीं ना कहीं जेजीएन के लिए ये पिस्टल राउंड बहुत ज़्यादा बड़ा वरदान साबित हो सकता है, बट टीएनके दे हैव टू completely look for a revival in this round. ट्रू। फॉर नाउ काफी स्लो अप्रोच है। आप देखिए जेजीएन, वो जानते हैं कि ये एक राउंड पूरा जो फेथ है इस ओवरऑल स्कोर लाइन का वो बदल सकता है। चीज का वेट किया True. जाएगा, बट कैडी तो करना चाहते थे वहां पे, इंफॉर्मेशन ले रहे थे शायद, बट चलिए ट्रेड भी आया। पर दिक्कत ये है कि नॉस्टी इज वेरी लो, barely survive कर रहे हैं। इवन वन बुलेट विल बी इनफ राइट इन द स्कल। 8-1 जेजीएन ऑन द मैच पॉइंट। केवल एक राउंड चाहिए यहाँ से ग्रैंड फाइनल्स क्वालिफाई करने के लिए, एंड दे विल बी फेसिंग द साइड्स ऑफ टीम ओकीडोकी। एग्जैक्टली। एंड जगरनॉट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसको आराम से जीत सकते हैं, बिकॉज लुक एट द फैक्ट्स। वर्टिगो का मैप है, आप सिटी साइड पे हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि फाइट्स क्लोज रेंज होंगी। फाइट्स का जो डिस्टेंस है वो डिसाइड करने का अपॉर्चुनिटी जगरनॉट के पास रहने वाला है। एंड वेपनरी के चलते लॉन्ग रेंज पे ही फाइट करना चाहेंगे एंड कैपिटलाइज भी करते हुए दिखाई दिए, क्लोजिंग द मैच एट अ 9-1। Rachita, our second grand finalists have been decided. जिस तरीके से ग्रैंड फाइनल्स में एंट्री मारी है, दाद देनी पड़ेगी उस बात की। बिकॉज आपको याद है, अगर हम पिछले मैच की बात करें जहाँ पे टीम ओकीडोकी वाज प्लेइंग, वो मैच काफी ज्यादा क्लोज गया था। एट अ पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगा भी था Yes. कि वो शायद जो कमबैक है वो हमें देखने को मिले। बट नाउ द थिंग इज कि हमें दोनों ग्रैंड फाइनल्स मिल चुके हैं। फ्रॉम वन साइड वी हैव द साइड्स ऑफ ओकीडोकी एंड दूसरी तरफ हमारे साथ टीम जेजीएन रहने वाली। अब ये ग्रैंड फाइनल्स जो हम बेस्ट ऑफ 3 के रूप में देखने वाले, ये काफी सारी जो चीजें है वो डिसाइड करने वाला है आना।
Absolutely. And this grand finals ke liye, there's going to be quite a lot of excitement because both of these teams, they have been working their way in. दोनों का play style भी एक दूसरे से काफी अलग है. But now how they adapt to each other is going to be the question. Yeah, definitely that's going to be true. But right now, before we head in the grand finals itself, I guess it's time to take a very quick short break. हम जल्दी से जाएंगे. We'll be right back with the grand finals. Do not go anywhere, ladies and gentlemen. Stay tuned, and we'll see you around.
Hello and welcome back everyone to ROG Showdown series. I'm Ahana again with my very best wing woman Darshita. Darshita, it has been a fun ride, but I think you have news. Yeah, it definitely has been an amazing ride witnessing all these teams, but we do have a news to share to you guys that the grand finals will be happening offline due to some of the issues, and all the updates regarding the same will be updated on our social media. So अभी के लिए आपको क्या करना है जाके TC को Instagram पे follow करना है to know on who the winner is. I know you guys are excited, so were we, but चीजें होती है जिन्हें avoid नहीं किया जाता, and that's the reason we will be switching to an offline grand finals. But you know, दोनों भी teams काफी ज्यादा अच्छी थी and काफी ज्यादा strong थी. So I still Yes, am expecting all three mappers for the grand finals, जिसके results आपको बहुत ही जल्दी TC के Instagram channel पे देखने को मिलेंगे. तो जल्दी से जाइए, जल्दी से follow कर दीजिए TC को Instagram पे, and make sure you guys subscribe here as well. But before going, Anna, do you have anything to say? I just have to say, Darshita, if Okidoki wins, then I'm getting a treat from you. If Juggernaut wins, you're getting a treat from me. Okay, well done. You guys can follow us on our Instagrams as well to see if we guys have given each other the treat that we deserve. But for now, that's about it, ladies and gentlemen. Thank you so much for tuning in. You guys were watching ROG Showdown series by ROG India and Intel. It's me, Darshita, alongside me, Ahana. We are signing off for today. We'll see you guys tomorrow with another beautiful day, another amazing story. Until then, take care, happy gaming, and I hope you guys rank up.